All right, welcome back, viewers, to our another exciting episode of our podcast series, The Young Tuck Dialogues by Kropstigl. And today we have a very energetic and an amazing guest with us. On the occasion of episode 88, why not we think about something amazing? So, Priyanshu, welcome to the podcast episode. First of all, thank you so much for making the time. So, for our audience who have been watching us for the last 79 episodes, and now this is our 80th. So, to tell you a bit about Priyanshu, Priyanshu is the founder and CEO of a very amazing startup, Clean Water. And as the name suggests, he works on cleaning a lot of water. It is not a very interesting industry, but he has been able to build a business out of it. And not just a business, we will deep dive into. I really liked his products in the preliminary call that we had done. Like they have made such a big lotus that can, I think, carry 2000 kgs or something, you told me. Yeah, it carries 1500 kgs and it floats 1500 kgs. intake up to 3000. Yeah. It's something I have never seen in my life. It looks like a UFO coming from the sky. So let us first, Priyanshu, of course, starting with your background, IIT Bombay. क्या क्या नहीं किया आपने? अब मैं उसमें I cannot, do justice कि आपका इतना लंबा एक story पे मैं बात करूँ. So you start now. The ball is in your court. So let us begin. Sure. So I'll start with a quick intro, Anmol. So I actually come from Indore. That's my hometown. Kota factory ka product bhi hu. So post that I went to IIT Bombay with a BTech in civil engineering 2008 to 12. Worked with a couple of and chose civil engineering by choice actually. Like I could have got one of the so considered better branches, but I chose civil by choice. Worked with a couple of civil engineering, real estate organizations during college, even post college as well. Then moved on to a startup called Housing.com, which was, I think, well known back then, which kind of gave me the confidence that, hey, even I can start an organization myself. But I wanted to solve a major social problem in the process. So thought about solid waste, thought about energy, but kind of narrowed down on water. Started with building wastewater treatment plants first, the sewage treatment plants, etc. Built over 30 of that before realizing products-based business model would be far more scalable as compared to services. And that nobody was into rejuvenating water bodies. Like the ones, even the people who set up the treatment plant weren't actually running it. Out of our 30 clients, not even 5 of them were running the treatment plants, and the water bodies were still getting polluted. So we thought to ourselves, how can we cater to the millions of water bodies out there? So let's make a product that is going to be installed on every water body in the future, and let's make it centrally, like manufacture it centrally in one place so that we can ship it to any corner of the globe. And over time, that's what we have positioned ourselves as. And also the name suggests clean water. So simple, nice. So clear, like you have taken all the branding in one place. Yeah, I think it should be direct. And even our the private limited or the organization that we've registered is Sustainable Water Technologies Private Limited. So even that's very direct. No, it is crystal clear. So एक जर्नी आपकी कि आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग अब फिर स्टार्टअप्स तो आपने थोड़ा तो बता दिया दैट यू सो दैट Kida came in, I will call it a Kida. Entrepreneurship is something that is not easy, and especially when you are innovating something. So you must have your own shares of up and down. Housing.com, of course, that's a journey that you have taken. But when you started your own journey, so this time, like, what was the emotion? What was the feeling? Okay, so for me, actually, the feeling started towards the end of my stint at Housing.com. हाउसिंग के एंड में हम लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए लाइफ में नेक्स्ट व्हेन वी वर आई वाज काइंड ऑफ एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर मूविंग आउट ऑफ हाउसिंग एक सबसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सजेशन मिलता है पर्टिकुलरली पेरेंट्स से क्या जहां से सबसे ज्यादा पैकेज मिल रहा है वहां ज्वाइन करो ना आईआईटी क्या सोच रहे हो इसमें कुछ और सोचना ही नहीं होता है बट आई डिडंट या तो सबसे ज्यादा जहां पैकेज मिल रहा है वो ज्वाइन कर लो या कोई और दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन कर लो जिसमें ई सॉप्स के साथ कुछ अपसाइड हो बट हाउसिंग में रहते हुए आई गॉट इनफ कॉन्फिडेंस कि इवन आई कैन स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन माई सेल्फ क्योंकि हाउसिंग में 24-25 की एज में आई गॉट टू हायर ट्रेन लीड अ टीम ऑफ 700 पीपल ऐसा एक्सपीरियंस जनरली 24-25 की एज में नहीं मिलता है आई वॉज पार्ट ऑफ सीईओ's ऑफिस एज वेल the company had grown to 1800 crore valuation in less than 3 years more than 2000 employees
तो वो बहुत अच्छा एक्सपोजर था। और सीईओज ऑफिस का पार्ट होने के कारण वो भी आ जाता है कि यार इवन आई कैन स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन माई सेल्फ, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है व्हेन यू आर इन करेक्ट। दैट एनवायरमेंट। बट द थॉट प्रोसेस एक्चुअली वेंट प्रिटी डीप कि यार मैं जीवन में कुछ भी क्यों करूं, मैं उठ के पानी भी क्यों पीऊं, कुछ भी क्यों करूं जीवन में। And it went spiritually deep. The answer I came up with was the best way I could spend my lifetime is if I'm solving the most pressing social problems of today. थोड़ा इंडिक फिलोसफी बोलो या जो भी बोलो, उसमें एक मोक्ष निर्वाणा लिबरेशन में एक है, फेथ है, बिलीफ है। तो बेस्ट वे आप आपके जो कर्म उतार सकते हो, यू कैन गिव बैक, इज बाय डूइंग समथिंग लाइक सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स। अगर आप वाटर बॉडीज रिजुवनेट करते हो तो दैट हैज अ मैसिव इम्पैक्ट, राइट? And if you can build a business out of it, give livelihood to a lot of people while doing all of this, like I think that's the best way I could spend my lifetime. तो आई फर्स्ट स्टार्टेड विद ट्रीटमेंट प्लांट कि यार हर जगह गंदगी है, इसको ट्रीट करते हैं। पर फिर रियलाइज हुआ यार लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट प्लांट बनाना नहीं है। जेन्युइनली हार्डली कोई लोग हैं जो एनवायरमेंट के बारे में रियली कंसर्न है। एटलीस्ट 7-8 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बहुत ही कम थे। अब विद ग्लोबल वार्मिंग लोग यस, रियलाइज कर तो लिए हैं एवरीबॉडी कि इज हाँ भाई रियलाइजिंग सच है। कि अब हाथ से जा रही हैं चीजें। हाँ, गर्मी फील हो रही है अप्रैल में ही, तो अब नाउ यस। पीपल आर नॉट नॉन बिलीवर्स एनीमोर। तो ओवर टाइम फिर ट्रीटमेंट प्लांट से चालू किया, सर्विसेज से स्टार्ट किया। इंडिया में सर्विसेज की वैल्यू होती नहीं है। ज्ञान तो फ्री में मिलना चाहिए, इसके क्या पैसे ले रहे हो, और सर्विसेज दे भी नहीं, रहे मैं हो। तो खुद की सर्विस कंपनी चलाता, सो आई कैन टेल यू। हाँ हाँ, एंड इवन यूड नो कि यार क्लाइंट्स वुड आस्क यू टू गिव योर सर्विसेज फर्स्ट और पेमेंट बाद में मिलता है। पेमेंट बाद। एंड इंडियन क्लाइंट्स आर पुअर पे मास्टर्स, पेमेंट रोक लेंगे, लेट देंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपसे मेंटेनेंस या कुछ चीजें ले लेंगे। एंड ऑल्सो दैट इज नॉट स्केलेबल, वेरी यस, स्केलेबल। इट इज फॉर वेरी। एग्जाम्पल एक आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्चरल कंसल्टिंग सर्विसेज देता है, क्रिएटिव काम है, एक बार में वो 10, 20, 50, 100 प्रोजेक्ट्स कर सकता है, 200 कर लेगा, 2 लाख तो एक साथ नहीं कर सकता, नहीं राइट? कर सकते। तो पर इंडिया वर्ल्ड में जितनी वाटर बॉडीज हैं जिनको रिस्टोर करना अगले 5 से 10 साल में, तो एक सर्विसेज बेस्ड अप्रोच से हम सब तक नहीं पहुंच सकते। मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे सर्विसेज या कंसल्टेंट्स की जरूरत नहीं है, वहां पर है, कॉन्ट्रैक्टर्स की भी जरूरत है। बट वी कैन ऐड वैल्यू जहां पे उनकी एक्सपर्टीज खत्म होती है, कि एक कॉन्ट्रैक्टर एक कंसल्टेंट आके टेंडर निकाल लेगा, रिपोर्ट बना लेगा, सफाई कर लेगा, बाउंड्री वॉल बना लेगा तालाब के आसपास, वाटर बॉडी के आसपास, पर यू विल स्टिल हैव टू क्लीन द वाटर, राइट? यस, एंड अगेन बहुत एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंज है इंडिया की वाटर बॉडीज, क्योंकि एक नाले में हर घर का पाइपलाइन आके मिलता है साइड से, ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह बची नहीं है, सब तरफ से इंक्रोच कर लिया है। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और उसको फिर कैसे इन इसमें आपको सीटू। क्या लगता है, ये पुअर प्लान, सिटी प्लानिंग की वजह से ये सारे इश्यूज हम फेस कर रहे हाँ, अनप्लैंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हैं? के कारण ये हुआ है। हमारी सिटीज अनकंट्रोलेबली फैल गई। उनको एक बेसिक स्टॉर्म वाटर लाइन अलग होनी चाहिए, ड्रेनेज लाइन अलग होनी चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे नहीं पाए जितने तेजी से हमारा पॉपुलेशन ग्रो हुआ। एंड ऑल्सो द सिस्टम हैज बीन करप्ट फॉर एवर। या तो जो एक बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी थी वो भी नहीं हो पाई, जहां पे परमिशन नहीं देनी चाहिए थी वहां भी दे दिए, तो सिटीज ये इसमें अनकंट्रोलेबल। आपने जो पॉइंट बोला ना, जहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी, तो रिसेंटली इवन आई सफर्ड विद दिस, सो माय फैमिली गॉट टाइफाइड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का ये करप्शन। सो हुआ क्या, लाइक दो आई लिव इन अ कैंट एरिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय कैंट, बट यहाँ पे पानी की पाइपलाइन और जो गंदे पानी की पाइपलाइन है वो दोनों साथ साथ है। तो हुआ क्या कि अब वो पाइपलाइन पुरानी थी, विद द न्यू लाइन दे हैव सेड कि आपको इतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो तभी ये लाइन एक्टिवेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। भाई जब हाँ, मेरी पुरानी लाइन है तो आप तो उसमें करके दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग, देन सेकंड थिंग इज दैट घर से इतने दूर है वो लाइन, मतलब इट इज लाइक 200 मीटर्स, तो मैं वहां से खुदवा के पाइपलाइन खुद लेके आऊं घर। ठीक है, आई एम वो जस्ट तो टेलिंग है। अ केस स्टडी ऑन दिस पॉडकास्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड, जब आपने पॉइंट यस। बोला। एंड देन द थर्ड थिंग इज, अभी क्या हुआ इन आर एरिया, मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट टाइफाइड। सो डॉक्टर्स वर लाइक कि यार आपके एरिया में सबको टाइफाइड क्यों हो रहा है, पानी में ऐसी क्या दिक्कत है? फिर पानी के जब टेस्ट हुए तो ये रियलाइज हुआ कि उसमें नाली का पानी आ रहा है, पानी हाँ, पीने की पाइपलाइन में। सो दैट इज हाउ द करप्शन अफेक्ट्स अस, क्योंकि जो या पाइपलाइन डाल रहा है वो एकदम ही लीक प्रूफ वेल क्वालिटी का काम नहीं कर रहा है। नहीं ही कर हैज टू कट कॉर्नर्स ताकि ही कैन मेक मनी फॉर द ऑफिशियल्स, फॉर हिमसेल्फ एटसेट्रा। तो अक्सर जब ये दोनों पाइपलाइन साथ में होंगी तो उन दोनों का पानी मिक्स होगा ही, एंड दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई आई आल्सो होल्ड करप्शन अकाउंटेबल फॉर दिस। करेक्ट। एंड दिस इज कॉमन अक्रॉस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही की हाँ ज्योग्राफी नहीं, में दिल्ली का पाइपलाइन। मैं अभी रिसेंटली केस स्टडी पढ़ रहा था, तो कितना वहां पे बुरा हाल होता है लोगों के साथ।
दिल्ली तो लाइक इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, बट हाल सबसे ज्यादा वहां बुरा है। हाँ हाँ हाँ, एवरीबडी इज फेसिंग वाटर। वाटर तो वहां पे मतलब इतना बड़ा इशू है कि लाइक मैं राइट। तो वहां पे रेजिडेंट्स मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं, देहरादून से गए, सो दे जनरली गेट सिक कि यहाँ का तो इतना साफ सुथरा वो है, वहां जाते ही एकदम। And Yamuna is one of the biggest challenges in the country Yes. right now. I'm willing to stick my neck out and say कि अगले 10 साल भी साफ नहीं होने वाले, चाहे जो कर लो आप। मतलब जो करंट ग्राफ जा रहा है, गवर्नमेंट जिस तरीके से फंक्शन करती है एक्सेट्रा, अगले 10 साल भी साफ नहीं हो रही है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यमुना दिल्ली और यूपी का भी बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा का भी बॉर्डर है, तो तीनों स्टेट को रोकना पड़ेगा। सीवेज चलो एक बार फिर भी आ गया तो ट्रीट हो सकता है, आपको सारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर रोकना पड़ेगा। और आज की करेक्ट। कैपिटलिस्ट दुनिया में वो होता हुआ नहीं दिख रहा कि बहुत आप बहुत बुरा। इंडस्ट्रीज पे ब्लैंकेट प्रोहिबिशंस, पाबंदी लगा पाओ कि आपका एक बूंद भी वेस्ट वाटर नदी में नहीं आएगा। वो आज की इंडिया में होते हुए नहीं दिख रहा है, तो नहीं हो सकता। दैट्स मैंने तो व्हाई। इसकी केस स्टडी पढ़ी थी, तो आई गॉट टू नो कि कोई एक 50 किलोमीटर लंबा कैनाल है, उसमें से हरियाणा की इंडस्ट्रीज का कूड़ा आता है और वो सीधा जाके यमुना में मिलता है। मतलब 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो वेस्ट। हाँ हाँ, नजफगढ़ ड्रेन, शाहदरा ड्रेन, ऐसे काफी सारे हैं जो सिर्फ मिलियंस एंड करोड़ ऑफ लीटर सीवेज नहीं, साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट लेकर आ रहे यस, हैं। इंडस्ट्रियल और वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी एक टाइप का नहीं होता है, वो फार्मा वाला भी वेस्ट हो सकता है, वो डाइज टेक्सटाइल वेस्ट भी हो सकता है। केमिकल्स तो 100 तरह के हो सकते हैं, और नेचर कुछ क्वांटिटीज में केमिकल्स आते हैं, ट्रेस क्वांटिटीज में, तो इसको केटर कर सकती है। पर आप जहर ही डाल दोगे तो नेचर खराब हो जाएगी, उस खराब जहर ही को हो साफ नहीं कर पाएगी। जाए। नहीं, और ऑन टीवी हाउ दे क्लेम हम अगले इतने में साफ कर देंगे, ये कर देंगे। तो आप ये समझना, ये थोड़ा परसेप्शन मैनेजमेंट का भी है। लाइक यू आर फ्रॉम अ मार्केटिंग फर्म, यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि काम करना और काम दिखाने में दिखाना। फर्क है। आपने काम किया हो या ना किया हो, सामने वाले को अगर लग गया कि आपने काम किया है, तो आपका पर्पस सर्व हो गया। सेम आज पॉलिटिशियंस के साथ हो गया है कि करेक्ट। आप काम करो नहीं करो, माहौल वैसा बना दो कि यार पीपल को लगे हाँ कुछ हो रहा है। जैसे अभी दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, चेंज हुई, राइट? तो उन्होंने हाथों हाथ आके यमुना पे बोट्स चला दी कि लोगों वोट को लगा चला अरे दी। सरकार Yes, चेंज मैं हुई, भी अब यही तो बोलने वाला था। यमुना साफ हो जाएगी। आप देख लेना 10 साल बाद, आप नहीं मतलब हो आप, सकती। none of us is going anywhere। तो वो परसेप्शन पे आ गया। और एक और बात यह है कि लोग वाटर पे वोट नहीं करते। पूरे शहर में, जैसे इंदौर की 30-40 लाख पॉपुलेशन है, पूरे इंदौर में 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनका वोट पलट जाएगा कि यार इन्होंने नदी साफ नहीं करी या तालाब साफ नहीं किए तो मैं तो इनको वोट नहीं करूँ। पूरे शहर में 10 भी वोट नहीं पलटेंगे, तो क्यों करेगा पॉलिटिशियन? और ब्यूरोक्रेट्स के पास रियल पावर बची नहीं है, हाँ, पॉलिटिशियंस आर कॉलिंग द शो। और जब वो पावर और वोट्स नहीं बदलते उससे, तो क्यों काम करो? उसको एक कैश काउ बना लो और चलने दो। मतलब चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक बम नहीं फटेगा, जब फटेगा फिर देख लेंगे। एक्चुअली डिजास्टर के बाद ही जागेंगे लोग। अभी आप कितने अवेयरनेस कर लो वो नहीं होगा। जब या लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे या तभी हो। मेजर माइग्रेशन होने पड़ेंगे, कि यार आज मान लो इस साल तो बैंगलोर में पानी खत्म हो गया, तो करेक्ट। 5 लाख 15 लाख लोगों को बैंगलोर छोड़ना पड़ रहा है, भले ही गर्मी के 3 महीने 6 महीने, फिर वापस आ जाएंगे। तो तब लोग जागना चालू करेंगे। बिना डिजास्टर के अपने यहाँ लोग नहीं जागते नहीं, आप अनफॉर्चुनेटली। इमेजिन करो देहरादून जैसी जगह पे, जो हम लाइक वी लिव इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, यहाँ पे इतनी इश्यूज क्रिएट होने लग गए हैं, दे हैव कट डाउन ट्रीज। तो पहले तो चलो एनवायरनमेंट में इशू आया, अभी पानी की शॉर्टेजेस होने लग गई हैं यहाँ। तो दे आर बिल्डिंग सम, इन्होंने कुछ कैनाल बनाया मसूरी से निकालते हुए, उसकी पाइपलाइन वहीं फट गई। तो पता नहीं कितना मैसिव लेवल पे वाटर वेस्ट। और यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लाइक हमारे पास तो गंगोत्री, यमुनोत्री, एवरीवेयर, लाइक वी हैव सो मेनी ग्लेशियर्स। स्टिल देहरादून में देर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ पे पानी बहुत बड़ा इशू है। यू कैन राइट। इमेजिन। और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम्स है, लाइक देयर इज अ लेक नियर टू माई हाउस। सो बीच में तो लाइक इट इज, दो नाउ आर्मी इज डूइंग इट, सो अब तो काफी बेटर कर दिया, बट जब आर्मी नहीं थी उसमें, तो इट यूज टू स्मेल लाइक कि उसमें फिश मरी हुई रहती है हमेशा। इस तरीके का हो गया था, डेड। मतलब वहां से एरिया से ही नहीं निकल सकते आप। अभी तो इन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज किया, बट स्टिल मतलब नहीं है अभी उतना कि पानी दिखे ना आपको कि साफ है, वो नहीं है वहाँ। और तो दोनों प्रॉब्लम है आपके यहाँ। क्वांटिटी भी कम हो रही है, नदी में हाँ। जितना पानी बहता था सेम सीजन सेम डे पे, वो क्वांटिटी भी आधी हो गई होगी या बहुत कम हो गई यस। होगी। और जो क्रिस्पिना। है वो भी गंदा है, तो आप यस। उसको यूज भी नहीं कर सकते डायरेक्टली कि आपने सीधे बस नदी में पंप डाला और आप कुछ यूज कर लिया, पशु ने पानी पी लिया, खेत में डाल दिया। उसमें केमिकल्स हैं तो आपका जमीन खराब हो जाएगी ओवर टाइम। यस। तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एंड आई डोंट नो, लाइक वी आर हेडेड फॉर अ डिजास्टर। इट इज अ कांट स्टॉप डिजास्टर। इट। आप देहरादून में यू यू कैन
गूगल रिस्पना रिवर थी, अभी रिस्पना में सिर्फ खाली पत्थर दिखते हैं और कूड़ा दिखता है। सूख चुकी है पूरी रिवर। तो बहुत हाँ, मतलब मेजर, अब ऑफ कोर्स होता है क्या, जब बारिशें होती हैं, सो देहरादून बना हुआ है ऐसे है, तो सारा पानी एक साथ आता है। डिजास्टर भी उस तरीके से होते हैं क्योंकि इन्होंने फ्लड्स। डेवलपमेंट ऐसा किया है। फिर पानी का इन्होंने पाथ बदला है कई जगहों पे, तो उससे भी बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वाटर हैज इट मेमोरी, मैंने तो ये चीज देखी है, वो वहीं आ जाता है वापस जब बारिशें राइट। होंगी, कब तक रोकोगे। हाँ, तो ये सारे बहुत इश्यूज यहाँ होते हैं, तो वाटर इज समथिंग। तो खैर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कि आपने सोल्यूशन क्या क्या बनाए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। राइट। तो हम लोगों ने एक्चुअली टू केटर टू दिस प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि राइट। जैसे आपको वाटर बॉडीज रिजुवनेट करना है तो काफी काम होते हैं, राइट। वाटर बॉडीज पे जैसे कूड़ा है, कूड़ा कूड़ा उठाने का काम कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी, कोई एनजीओ, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सेम सकता बाउंड्री वॉल बनाने का, पेड़ लगाने का, वॉकवे बेंचेस, लाइट से बेसिक सर्विसेज, सिविल वर्क, अर्थवर्क कोई भी कर सकता है। पर आपको वाटर क्वालिटी इंप्रूव करनी रहेगी, और उसमें भी कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमने वाटर बॉडीज को सब तरफ से एनक्रोच कर दिया है, तो पास में ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जगह नहीं है। तो आपको कुछ फ्लोटिंग सोल्यूशन चाहिए जो पानी साफ कर दे। तो और नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, अब केमिकल सोल्यूशंस काम नहीं करेंगे। तो वी हैव मेड नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट आर सस्टेनेबल, स्केलेबल, जो हम एक जगह मैन्युफैक्चर करके वी कैन सेंड आउट ग्लोबली। So we've created 3 products: floating wetlands, floating aerators, and beneficial microbial cultures. फ्लोटिंग वेटलैंड्स एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स पानी में कंप्लीटली समर्ज रहेगी, हैवी मेटल्स पुल करेगी, न्यूट्रिएंट्स पुल करेगी, पोल्यूटेंट्स हटाएगी, हैबिटाट बूस्ट करेगी कि मछलियां उसके नीचे आके छुपेगी, पक्षी उसके ऊपर आके बैठेंगे, डक्स एग्स देंगी उसमें। तो दैट इज अबाउट फ्लोटिंग वेटलैंड। एरेटर्स आपने एक्वेरियम्स या फिश टैंक्स में बबल्स देखे होंगे ऑक्सीजन है। के। यस, तो करेक्ट। इमेजिन बिगर वंस फॉर वाटर बॉडीज की पानी में ऑक्सीजन डालना है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है पोल्यूटेंट्स के कारण। तो aerators to aerate or oxygenate the water. And the third being beneficial microbial culture. Simply put, a powder with friendly bacteria. क्या वो पाउडर पानी में डालेंगे तो अभी ग्रीन कलर हो जाता है तालाबों में, यस। वो नहीं होगा। स्मेल आती है, स्मेल कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। ऊपर जल कुंभी, एल्गी, काई, काफी इन्वेसिव स्पीशीज आते हैं, उनका बनना बंद हो जाएगा। जो नीचे लेगेसी खूब सारा गाद या स्लज इकट्ठा हो गया है, उसकी वॉल्यूम कम होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जो बहुत ही इजी टू इंस्टॉल हो, फ्लोट हो रहे हो, नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, उस टाइप के प्रोडक्ट्स अब हम लोगों ने बनाए हैं, एक सो बार दैट आप ऑडियंस को दिखा क्यों नहीं देते प्रोडक्ट्स, लाइक दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैंने तो देखा है, सो आई एम एबल टू विजुअलाइज एवरीथिंग, बट फॉर देम थोड़ा वो रहेगा बिकॉज इट इज डेफिनेटली। समथिंग वेरी न्यू। So I'll put up my screen या। to quickly run you through that. This is what we do. We make nature-based products for water bodies. Untreated effluents जो water में आ रहे हैं, उस problem को solve कर रहे हैं, given the urgent timeline. And these are our products: the floating wetlands, floating aerators, and beneficial microbial cultures. So wetlands are these floating platforms with plants on top, roots go down into the water, पुल अप हैवी मेटल, जिंक, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स को आप पानी से नहीं हटाओगे तो वो न्यूट्रिएंट या फूड जल कुंभी, वाटर हाइसिंथ खा के पूरा तालाब पे फैल जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो वो सब हटाता है, इकोलॉजी को बूस्ट करता है। सो दैट्स अबाउट वेटलैंड्स। एरेटर्स, आपने फाउंटेन्स देखे होंगे या यस। सब सरफेस एरेशन देखा होगा कि पानी को हवा में मत डालो, हवा को पानी में डाल दो, ऑक्सीजन को वाटर में पंप करो। रिवर्स कर दो। हाँ, दैट्स एरेटर्स। एंड कल्चर्स तो एक पाउडर है जो आप सिंपली वाटर पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे डबल अप एज अ ब्यूटिफिकेशन टूल। जैसे वेटलैंड्स विद दीज फ्लावर्स लुक रियली ब्यूटिफुल। दीज आर सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। 2019 में नालंदा सरोवर रिजुनेट किया, वाटर हीरो का अवार्ड मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। 2 साल पहले पिपलियाना लेक रिस्टोर किया, जहां पर एक वेल फंक्शनिंग एसटीपी है, फिर भी इन्वेसिव स्पीशीज का प्रॉब्लम आ रहा था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। एवरी पैरामीटर विद इन नॉर्म्स रखे हैं। दिल्ली में हौजे शमसी लेक, अगेन इस पे इन्वेसिव स्पीशीज थे। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स नाउ। एंड अन्नपूर्णा लेक इन इंदौर, जो कि एक डेड लेक थी। यहाँ पे करीब 1.5 साल पहले 50 से 70 हजार मछलियां, सारी मछलियां मर गई थी। जलकुंभी भी थी, सीवेज भी आता है, लोग पूजा सामग्री भी तालाब में फेंक जाते हैं या ठंडी कर जाते हैं। नाउ द वाटर क्वालिटी इज एट ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। इतना क्लीन कर दिया वाटर। एंड ऑल्सो जो हम एक लोटस एरेटर की बात कर रहे थे शुरुआत में, या द फ्लोटिंग यूएफओ लोटस थिंग। शुगर एरेटर, तो ये भी यहाँ पे किया है।
और ये तो मतलब प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स पे अन्नपूर्णा लिखा गया है. And just to quickly show people more about the lotus aerator, because that's, I think, very Yeah, that is very interesting appealing. actually. Yeah, so it looks like this. Form of the lotus aerator, पानी में submerged है. You can see the turbulence in the water जो पानी को aerate कर रहा है. And these 12 big solar panels power it during the day. 4 to 5 hours रोज रन करता है. ये जो 6 छोटे सोलर पैनल से बैटरी को पावर करते हैं जो इस बॉक्स में है, जो रात को ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन कर देंगे. साइड में पेटल्स डाले हैं टू गिव इट द लुक एंड फील ऑफ अ लोटस. And it's really huge. So when you actually see a person next to it, do you realize the sheer size of it? मतलब ये Right. 30 feet diameter का है, 1500 किलो लेकर तैर रहा है, and it can take up to 3000 kgs and still float. So the first of its kind ever, and this is everything is in house, like conceptualizing, designing, fabricating, manufacturing, installing, maintaining, everything we've done ourselves. So this is a काफी very इसमें आपने दिमाग लगाया होगा टू गिव इट दैट लुक. तो आइडिया कैसा है कि इसे लोटस जैसा बनाया जाए? ओके. तो प्रॉब्लम आ रही थी जब हम नॉर्मल एरेटर्स इस तरीके के लगा रहे थे, जो ये वाइट पाइप के थ्रू एयर पुल करते हैं और एयर को, ऑक्सीजन को पानी में डाल देते हैं. ओके. अब तालाबों पे दिक्कत यह है कि सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते रात को, तो लोग आके केबल चुरा जाते हैं. कि एरेटर, ये अब यहाँ से जब एरेटर पानी में है, केबल तो बाहर आएगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अब रात को लोग आके केबल चुरा लेंगे, ब्लैक मार्केट में जाके सेल कर देंगे, कभी कभार मोटर भी चुराने आ जाएंगे. तो अब इसको कैसे सिक्योर रखें? और बार बार रेकरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कौन पे करेगा? हम करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे. तो अगर आप इसको, तो ये दोनों प्रॉब्लम को, कि थेफ्ट भी ना हो, अब इसको तालाब के बीच में जाके बिना बोर्ड तक के यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है. आप कुछ चुराने का सोचे भी तो उसको इतने हैवी चीज को कैरी करके कैसे लाएंगे, एंड इट्स इन द पब्लिक आई. तो थेफ्ट प्रोटेक्ट हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी से रेकरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बच गए. बच अब गए. गवर्नमेंट को या हमको किसी को इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना. तो दैट इज हाउ इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम. और अक्सर लोगों को ब्यूटिफिकेशन चाहिए होता है कि तालाब दिखे भी अच्छा, साफ तो कोई दिखे भी अच्छा, ताकि हम आके टाइम स्पेंड कर पाए, सेल्फी ले पाए, बोटिंग कर पाए, तालाब में नहा पाए. तो एक ब्यूटिफिकेशन एस्पेक्ट के लिए भी थोड़ा पेटल्स लगा के एक लोटस का फील उसको दिया. गॉट इट. नहीं, अच्छा, काफी अच्छा दिमाग लगाया आपने और आपकी टीम ने. थैंक यू. सो जैसे नेचर बेस्ड सोल्यूशन एक आजकल वर्ड है जो काफी ट्रेंड में भी चल रहा है. सो आपने अपने स्टेक होल्डर्स को, सिविक बॉडीज को अर्ली ऑन कैसे कन्विंस किया था कि हम इस तरीके का कुछ करना चाह रहे हैं? या बहुत टफ था. नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स जो एक कीवर्ड है, पिछले 2-3-4 साल में रियली पिक किया है. 7-8 साल पहले लोगों को नहीं था नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स का. एंड ऑल्सो फ्लोटिंग वेटलैंड जैसी चीज, कि एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे प्लांट्स है, उसकी रूट पानी में है, जब तक आप वो विजुअल ना देखो, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या फंक्शनिंग होगा और उसमें भी क्या टेक्निकल डिटेल्स हैं. तो मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी. मतलब अनलेस यू मीट समवन, show them things on a printout or on a laptop, they really won't understand कि यार ये नेचर बेस्ड प्रोडक्ट है क्या. और कोई उनको पुश करे तो नेचर बेस्ड प्रोडक्ट लेना, अदरवाइज तो केमिकल डोजिंग चलने दो. कि आप कोई हर्बिसाइड या कोई पानी में दवा डाल के जो जलकुंभी आ रही है उसको मार के हटा दो. पर जब वो दवाई कार्सिनोजेनिक है, क्या फर्क पड़ रहा है पर लोगों को? मतलब कोई एक गवर्नमेंट में बैठा हुआ एम्प्लॉई इज को सही सोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता. उसको ये कि मेरा बॉस मेरे पे उंगली ना उठाए, मेरे से सवाल ना पूछे, मुझ पे इंक्वायरी ना बैठे, कोई मुझे किसी चीज के लिए अक्यूज ना करे, बाकी सब चलने दो. तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन, जैसे अब वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, तो इट्स पिकिंग अप मोर. बट शुरुआत में बहुत एफर्ट था, मार्केटिंग एफर्ट भी, क्योंकि ये बिना आपको विजुअल्स दिखाए पॉसिबल ही नहीं है टू कम्युनिकेट कि प्रोडक्ट क्या है, क्या बेनिफिट आपको लाएगा. So that was tough, and that made our job much more difficult. And इसमें वाटर बॉडीज तो अभी पिछले 5-6 साल में रिस्टोर होना चालू हुई है. 7-8 साल पहले तो होती भी नहीं थी. मतलब किसी ने एक दो इधर उधर कर दी, वो बात अलग है. तो बजट्स भी नहीं है. लाइक ऑल द मार्केट फोर्सेस आर अगेंस्ट यू, कि बजट भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उनको नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी कोई अफिनिटी नहीं है. तो देयरफॉर द स्टार्ट वाज स्लो. एंड ऑल्सो पीपल वुड आस्क कि आपका ये जो नेचर बेस्ड प्रोडक्ट है वो करता क्या है? ये वाटर बॉडीज रिजुवनेट करता है. अच्छा, कहाँ कर रही है? तो फिर आपको एक पूरा वाटर बॉडी रिजुवनेशन प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ा हमको. जैसे
विद आवर प्रोडक्ट्स कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स हैं, वाटर बॉडीज रिजुविनेट करता है, ये देखो एक रिजुविनेटेड लेक। तो जो नालंदा सरोवर का हमने अभी पिक्चर देखा था वो 2019 में हमने उसी पर्पज से किया था कि हम प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर पाए इन अ लाइव रिजुविनेटेड वाटर बॉडी। एंड वो भी काफी उसके लिए भी फंड्स नहीं है, तो कहीं से जैसे तैसे करके वी हैड सेट इट अप, पर So काफी you अच्छा। took funding in the start or you bootstrapped it? वी बूटस्ट्रैप्ड इट Bootstrapped. राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, क्योंकि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे थे वो एक प्रॉफिटेबल नॉर्मल एक बिजनेस की तरह है। तो वट एवर मनी वी वर एबल टू मेक आउट ऑफ इट वी इन्वेस्टेड इनटू R&D। हालांकि हम कुछ इतना खास बना भी नहीं रहे थे, बेयर मिनिमम खर्चे कवर हो रहे थे, बट वी अंडरस्टूड कि R&D में नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा नहीं, रन ऑफ द मिल बिजनेस बन जाएगा। सो कुछ एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यूएसपी होना चाहिए, यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो R&D में इसलिए इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट्स खुद से रिजुवनेट किया, इसलिए इसका स्टार्ट काफी स्लो था इस सेक्टर में, बट ठीक है, वी गेटिंग देयर। अब ओवर टाइम, ओवर 6 7 8 years वी हैव काइंड ऑफ बिल्ड लाइक रिजुवनेटेड मल्टीपल वाटर बॉडीज, प्रोडक्ट्स के मल्टीपल टाइप बना लिए। जैसे आपने फ्लोटिंग वेटलैंड देखा, हम आज तक 18 से 20 तरीके के बना चुके हैं, लकड़ी के, लोहे के, एल्यूमिनियम, FRP, 1 by 1 मीटर, 2 by 2, स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगुलर। तो वो स्लो रहा, पर ठीक है, वी गॉट देयर। नहीं, लेकिन बट ऐसी आई थिंक जो आपने R&D वाली बात बोली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई सी मैक्सिमम प्लेसेस इवन इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड और आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मेंटरशिप या कुछ भी, मैं भी एक बिजनेस की तरह चला रहा था एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या कर रहा हूँ मैं सुबह आता हूँ, क्लाइंट से गाली खाया, शाम को खाया, टीम की गलती तो पर मेरी गलती क्योंकि कंपनी मेरी है। सो यही सब चलता था। फिर मैं और मेरे पार्टनर बैठ के यही बात करते थे कि क्या किया जाए। फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम R&D तो करते ही नहीं है, व्हाट आर वी डूइंग। तब हाँ, तक 3 साल निकल गए थे। देन वी ऑल्सो स्टार्टेड हायरिंग दिस डेटा पीपल, R&D पीपल की हाँ यार हम भी थोड़ा रिसर्च करें, खुद हमने टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो R&D वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यहीं पे स्टार्टअप फाउंडर्स या मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स वो हो जाते हैं कि R&D तो एक एक्सपेंस है, बट वो ये नहीं देखते कि यही तो आगे उनका वो है। हाँ, एंड ऑल्सो यू हैव टू बी हैंड्स ऑन। अब जैसे हम लोग तालाब में काम करते हैं, अब तालाब में मान लीजिए मैंने किसी मेरे एम्प्लॉय को, टीम मेंबर को बोला कि आप ये इंस्टॉल करो। अब उनको अगर वहां पे सांप दिख गया तो वो तो बोल देंगे सर मैं तो नहीं जा रहा, या पानी से किसी को डर लगता है कि स्विमिंग नहीं आती, सर नहीं, या गंदा पानी है, सीवेज है या कुछ भी है, तो आदमी को वो रहता है, देन यू हैव टू रोल अप योर ओन स्लीव्स एंड गेट इनटू द वाटर। करेक्ट। ये वाला पार्ट हर कोई नहीं कर सकता है। पीपल नहीं कर हैव कि यार मान लो कि मैं IITian होगा, मैं थोड़ी गंदे पानी को छूंगा, वो ईगो रहता तो मैं कर ही नहीं पाता। नहीं कर पाता है, करेक्ट। वो खुद उतरना पड़ता है तालाब में, गंदगी में, फ्लोटिंग आइलैंड्स के ऊपर जाके मैं खुद खड़ा होता था, बोट पे इंस्टॉलेशन में, हैव टू बी हैंड्स ऑन। अब मैं ऑब्वियसली एज द कंपनी इज ग्रोन, अब मैं डेलीगेट कर सकता हूँ काम, अब इंजीनियर्स इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कराते हैं, बट शुरुआत में वो बहुत जरूरी था, क्योंकि राइट। उसी से लर्निंग मिल रही है, उसी से आप नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेटर कर पा रहे हो। सो इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, दैट इज ट्रू एंड आई सी मैक्सिमम आजकल एक जो अभी नई जनरेशन आ रही है तो दे नॉट डू नॉट वांट टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। हाँ, मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि बस साफ साफ उसमें हो जाए। हाँ, और बिकॉज कोई आई हैव और कर सीन दे। इट, मैं तो लाइक आई हैव दिस MOU विद ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस हियर, तो जो बच्चे आते हैं उनका तो माइंडसेट ऐसा होता है कि फर्स्ट डे से गोल्डन स्पून मिल जाए एक बस उसमें चलना। हाँ, मैक्सिमम ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ देम जो, बट हाँ इवन हाँ, पर जैसे यहाँ ये पे प्रॉब्लम आ गई है आ जेनजी गई है एंड ये प्रॉब्लम एंड इट इज अ मिलेनियल्स। वेरी बिग प्रॉब्लम। अभी मैं यहाँ पे देहरादून में स्टार्टअप्स को वो भी करता हूँ, मतलब इन्होंने मुझे अपने एक्सेलरेटर में और इंक्यूबेटर में वो किया हुआ है कि गाइडेंस दो क्योंकि आप यहीं के एल्यूमिना है। तो मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो आई रियलाइज यार ये तो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हाँ, कैसे करोगे यार आप, अब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो जाके वो करो तो सही, एक बार हैंड्स ऑन खुद तो चला के हाँ, देखो, चलवा के तो दिखाओ। हाँ, फिर मैं जड़ें गहरी नहीं हायर जाएगी करके तो डेलीगेट करूंगा डे 1 से जड़ें कैसे गहरी चलवा। नहीं जाएंगी तो पेड़ ऊंचा नहीं हो सकता, पहले ये स्टॉर्म में गिर जाएगा। लोगों को ये रियलाइज नहीं होता, लोगों को सब कुछ इजी चाहिए, कोई और कर यस, दे, मेहनत नहीं करना है। ये एक खराब ट्रेंड है, एंड आई एम वरीड अबाउट इट एज वेल, यस लाइक इट फ्रॉम इज। द इंडिया पर्सपेक्टिव वी नीड टू one चेंज इट। one one at one place we are talking about that by 2047 we have to be the superpower on the other end हमारा यूथ ही नहीं करेगा तो कौन करेगा। एग्जैक्टली। कोरिया इज सफरिंग, उनके वहां पे अभी यूथ है नहीं। चाइना का भी धीरे धीरे वो जाता जा रहा है ट्रेंड हमारे पास से, लेकिन हमारे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है।
हाँ, और आने वाले समय में सबसे ज्यादा सफरिंग भी इसी यूथ को होनी है। यस। पिछली जनरेशन जिसने पूरा करप्शन किया, कॉर्नर्स कट किए, पर्सनल बेनिफिट के लिए कंट्री और सबको सेकेंडरी रख दिया, हाँ, अब उसका असर ये यूथ पे आना है। हम इसी करेक्ट। साल गर्मी देख रहे हैं, आप हर साल बढ़ते जाएगी अगले बढ़ती दो जा रही है। पांच 10 साल में। यही यूथ जब बड़ा होगा, जब मान लो 30 के एज के आसपास पहुंचेगा और सोचेगा कि यार क्या मैं बच्चे करूं या ना करूं, फिर समझ में आएगा दुनिया तो ऐसी हो गई है। एंड ऑब्वियसली यार पास्ट जनरेशन हैड मोर टू डू विद इट, बट व्हाट विल दे डू, मतलब एंड दिस यस। इज अ नहीं, इट प्रॉब्लम। इज वेरी कंसर्निंग। आपने जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचा, मैं भी वही सोच रहा था कि आज मेरा बिजनेस में इतनी दिक्कत आ रही है मुझे टू गेट द राइट स्टाफ, इवन अ सिंगल पर्सन, स्पेशली फ्रॉम द अपकमिंग जनरेशन। तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा 10 साल बाद? फिर तो मेरे को यही होगा, अपने से बड़े बड़ों को ही लाना पड़ेगा, लाइक 10 years 20 years ओल्डर, क्योंकि यूथ तो काम ही नहीं करना चाह रहा। सो हाँ एंड इवन दिस इज अ बिग टॉपिक दैट यूनिवर्सिटीज आर ट्राइंग टू सॉल्व। आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिग बिग प्रॉब्लम। हाँ, एंड दिस इज आई थिंक कॉमन एवरीवेयर। तो फिर कुछ तो इंसेंटिव्स अलाइन करने पड़ते हैं कि ठीक है, लाइक दे वांट टू मेक मनी फास्ट टुडे, यस। दे वांट टू एंजॉय एवरीथिंग, ईट गुड फूड, ट्रैवल एटसेट्रा। तो incentives ऐसे अलाइन कर दो कि अच्छा लेट्स से इफ यू आर ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, इफ यू ब्रिंग सो मच कन्वर्जन तो यू विल अर्न सो मच। तो देन वी हैव टू मोटिवेट देम इन सच अ मैनर दैट दे परफॉर्म एंड डिलीवर रिजल्ट्स। तो वो इवन वील हैव टू इनोवेट विद मॉडल्स ऑफ हाउ वी कैन, लाइक एक सिंपल प्लेन सैलरी मॉडल पे नहीं हो लोग सकता। मक्कार हो जाएंगे, वो तो नहीं होना है। अच्छा, तो जैसे आपकी इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट, तो आपकी इंडस्ट्री में आप इस चीज को कैसे देखते हो? बिकॉज हमारी वाली तो चलो दे एक्सपेक्ट कि हाँ एक बड़ा सा ऑफिस हो, वहां पे मेरे को सुबह सुबह जाऊं, एक अच्छे से ऐसे कॉफी का कप मारूंगा, कॉफी आ जाएगी। तो हम्म, बट योर इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट ऑन दी अदर साइड। उसमें आप कैसे देखते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए? ये हमारी इंडस्ट्री में दो तीन चीजें हैं। एक जो टेक तरफ के, इंजीनियरिंग तरफ के रोल हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि आज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स बहुत लोग कर रहे हैं, पर मार्केट में उतने जॉब ही नहीं। आज इंडिया में जॉब्स की मेजर किल्लत है। तो यस। एटलीस्ट हमें टेक इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज मिलने में दिक्कत नहीं होती है। एंड थोड़ी जॉब की किल्लत के कारण इवन दे पुट देयर गुड एफर्ट कि काम करना है। एंड ऑब्वियसली यू कैन चूज ओवर टाइम कि यार कौन अच्छा कर रहे परफॉर्मर हैं। है। People on the marketing, sales, branding, business side have to be motivated according to the business performance and numbers. यार अच्छा दिस इज योर बेस सैलरी, पर वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना उससे थोड़ा कम है, सो दैट यू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ताकि कंपनी को भी बिजनेस आए, सेल्स आए, कन्वर्जन आए, रेवेन्यू आए, ताकि इवन यू गेट अ परसेंटेज ऑफ इट। एंड देन इफ यू वर्क रियली हार्ड यू कैन मेक मोर, लाइक 1.5 times, 2.5 times of what you would have made एक प्लेन सैलरी पे। तो दैट्स हाउ वी हैव टू स्ट्रक्चर थिंग्स। फाइंड द राइट पीपल। कुछ लोग आते हैं सिर्फ सीवी बिल्ड करने के लिए, क्या हम्म। लाइक जैसे लास्ट 10 year टेक के थे, एप्स, सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, the next 10 years are for sustainability. राइट। तो even some people want to just build their CVs. तो कई बार उनको वो भी मोटिवेट एक फैक्टर होता है कि ठीक है यार अभी तुम फ्रेशर हो, 1 साल के, 1-2 साल के वर्क एक्स पे हो, तो स्टार्ट लर्निंग, थोड़ा ब्रांडिंग करो, वीडियोस बनाओ, कंटेंट, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो एटसेट्रा, इससे ऐसा सीखो। और तुम्हारा भी 1-2-3 साल में वैसा ग्रूमिंग होगा, skill development hoga, so that even when you kind of explore other opportunities 4 years 10 years down the line, whenever you have something great building for you, so even that is a motivating factor for them. And obviously the money, and if you deliver and perform well, you will also make some good money for you. That's how uh, we motivate people. Yeah. अच्छा, आपके स्पेस में डिजिटल, अगर मैं बात करूं अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने की इसके बारे में, तो मतलब आपके उसमें अगर मैं रील बना रहा हूं तो इट इज नॉट समथिंग दैट विल अट्रैक्ट, जो आजकल 5 सेकंड का अपना एक वो ट्रेंड शुरू हो गया। तो ऑडियंस को एजुकेशन की टर्म्स में बात करूं, तो वो कैसे वर्क करता है इन योर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली? बिकॉज दैट कुड बी अ गुड यूज केस फॉर द मार्केटर्स हु आर वाचिंग इट, बिकॉज दिस गॉट मी थिंकिंग एज वेल। अभी आपने ब्रांडिंग वगैरह जब बात करी। Hmm. Yeah, it's a very difficult thing of educating people, क्योंकि people now have very short spans of times. आप कुछ बहुत ही बोरिंग निबंध जैसे एकदम ही विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन आप बोलते जाओगे, तो लोग फटाफट स्क्रॉल कर जाएंगे, वो तो आधा सेकंड नहीं लगाते हैं। आधा सेकंड। तो फिर देन यू स्टार्ट डेवलपिंग कि हुक कैसे बनाऊं। मान लो कोई वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो जैसे हम लोग एक इन्वेस्टर पिच में एक ऐसा हुक बनाए थे कि यार
यार वो चाइल्डहुड पेंटिंग याद है जिसमें सब घर बनाते थे, आगे नदी होती थी, ऊपर पक्षी होते थे, एंड वो वाली फील याद है कितना कूल विंड विल caress your face, there are fishes in the water, birds in the sky, वो कितना अच्छा ड्रीम था, क्या एक आइडियल हाउस था। पर आज अर्बन सिटीज में वाटर बॉडीज के पास रहना उस ड्रीम से कितना दूर है, राइट? स्मेल आती है, मछलियां जिंदा नहीं रह पाती, पक्षी नहीं आते हैं। पर what if I told you that we have cracked the code to rejuvenating the water bodies so that all of us can one day realize that dream of living near them? तो इस तरीके के हुक्स बनाओ, कई बार अलग होते हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू इनोवेट विद टाइम कि यार लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो हाउ टू स्टिल कम्युनिकेट द मैसेज। अब हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब जनरली जो बड़े लोग हैं, लेट्स से 30, 40, 50 एज वाले ग्रुप के, तो वी आस्क देम टू कम ऑन अ वीडियो कॉल, गिव देम अ 15 मिनट, हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन एंड टेक द कन्वर्सेशन फ्रॉम देयर कि अच्छा आप इस ज्योग्राफी में हो, ये वाटर बॉडी रिजुवेनेट करना चाह रहे हो, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर यंगर जनरेशन और रील्स वाले इसमें लोगों को पुल करने के लिए कुछ ना कुछ हुक चाहिए। अभी जैसे आपने एक लोटस एरेटर देखा, तो वो कुछ एक नया विजुअल है जिस लोगों ने पहले नहीं देख रखा है, या फ्लोटिंग वेटलैंड्स जिसके ऊपर एक आदमी भी खड़ा हुआ है एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के बीच में। सो वी हैव टू यूज विजुअल हुक्स, ऑडियो हुक्स, थोड़ा बहुत जो आप वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड्स डाल रहे हैं, वो शायद आप जो अभी सबसे ज्यादा चल रही है रील, उस टाइप का म्यूजिक डालो क्योंकि पीपल थोड़ा कैची होगा। या जो एक वाइब आप सेल करना चाह रहे हो कि यार एक वाटर बॉडी अगर इतनी अच्छी रिजुविनेटेड होती तो मैं उस पर आराम से कयाक कर रहा होता, बोट कर रहा होता, स्विमिंग कर रहा होता, वो कितना अच्छा होता है। एक सितार जैसा एक या मेलोडियस म्यूजिक जैसा वो वाइब सेल करो, तो वो कम्युनिकेशन मैसेज भी हमारा इवॉल्व कर रहा है ओवर टाइम। बट वी ऑल्सो हैव जैसे जो ये ब्यूरोक्रेटिक अपने चैनल्स हैं, इनसे कभी रेजिस्टेंस फेस किया आपने, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड दिस आउट? सिर्फ रेजिस्टेंस ही फेस किया है, हेल्प तो मिली नहीं है। ओके। तो जो गवर्नमेंट की हम लोग एक जिम्मेदारी समझते हैं कि हाँ। वाटर बॉडीज रिस्टोर करना, मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है, ये अब ओवर टाइम आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे कि यार ये बहुत ही ना बचकानी सोच है, बहुत ही नाइव है। उनको वाटर बॉडीज रिजुविनेट करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, ऑफिसर हो, उनको सिर्फ और सिर्फ मनी से फर्क पड़ता है और किसी भी चीज से कितना है नहीं। कितना गया मेरा कितना बना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस चीज से मतलब है कितना आना है, कितना जाना है, और कितना मेरी जेब में बचना है, बस। बस इससे तो और इसमें आप ये समझिए कि वो हमारी हेल्प तो करते नहीं है, वो इनडिफरेंट भी नहीं होते हैं। गवर्नमेंट तो हमारे रास्ते में बाधा डालती है, भाई जिम्मेदारी गवर्नमेंट की वो खुद नहीं कर रही है। हम मान लीजिए बाहर से कहीं से सीएसआर फंड्स लेकर आ गए या ग्रांट्स लेकर आ गए और वाटर बॉडी रिजुविनेट कर रहे हैं, तो वो उसमें रोड ब्लॉक्स डालते हैं, बाधा डालते हैं कि अगर यार ये बाहर से फंड्स लेकर आके वाटर बॉडी रिस्टोर कर दिया तो फिर इसमें मैं करोड़ों का टेंडर कैसे निकालूंगा, मेरे जेब में कैसे आएगा? नहीं नहीं, इनको काम मत करने दो, इनको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही मत दो या परमिशन ही मत दो। तो ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स तो लगातार फेस होते हैं। मतलब आज हम लोग जितना काम कर पा रहे हैं गवर्नमेंट से जूझ कर करना पड़ रहा है। यू वोंट बिलीव, मेरे को नगर निगम कमिश्नर्स के मुंह पे आके धमकी देनी पड़ती कि भाई आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं बाहर से ग्रांट लाके वाटर बॉडी रिस्टोर कर रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे दो। तो 2 महीने टंगाएंगे, मना कर देंगे, फिर आई टू गो इन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड थ्रेटन हिम कि भाई मैं क्यों चुप बैठूंगा। फिर अभी देखो नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, चाहते हो मैं हाँ। बोलूं आपके बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में? मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मतलब इस लेवल तक जाना पड़ रहा है। ऑब्वियसली दिस वोंट वर्क एवरी टाइम, राइट। राइट? इट वर्कड वन टाइम फॉर मी, वाज ओके। हफ्ता भर में उन्होंने 2 महीने टाल रहे थे, हफ्ते भर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे दिया, बट आई नो दिस वोंट वर्क एवरी टाइम। तो गवर्नमेंट वाला तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं एंड आई एम वेरी एंड आई डू अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट बैशिंग wherever I can, because गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो रही है और वही है जो नहीं चाहते नहीं वाटर कर। बॉडीज रिजुविनेट हो। अनदर एग्जांपल, जलकुंभी, जो पानी पे आपने तालाबों पे अक्सर जलकुंभी हाँ। देखी होगी, तो आप उसको अगर हटाओगे तो 15 दिन, महीना भर में वो वापस आ जाती है। तो आप रूट से प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो वो आना बंद हो जाएगी। आना बंद हो जाएगा। पर ऐसा थोड़ी कर सकते। आपको याद है समय जब रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाता था, खराब रोड बनाना भाई साहब, अगले साल वापस टेंडर देंगे आपको। यस। तो जलकुंभी का वैसा, अच्छा आपने हटा दी, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने जलकुंभी हटा दी, ओहो अगले महीने वापस आ गई, लो एक और टेंडर ले लो, अगले महीने एक और टेंडर ले लो। तो इसमें गवर्नमेंट रूट प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगी। उन्होंने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि वो वोट नहीं आते, वाटर बॉडीज पे मूव नहीं होते,
तो उसको कैश काउ बना दो, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को साल में 12 टेंडर दो जलकुंभी को हटाने का, पर रूट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई ट्राई टू बी एज वोकल अबाउट इट ऑन पब्लिक फोरम्स, ताकि लोग ये रियलाइज करें। और जब लोग अपने पॉलिटिशियन से सवाल पूछना चालू करेंगे और उस पर प्रेशर आएगा, तो वो ब्यूरोक्रेट को डायरेक्ट करेगा कि भाई इसको अब सस्टेनेबली सॉल्व कर दो, अब बहुत प्रेशर आ रहा है, वोट पलट जाएंगे, भाई मेरी सीट का सवाल। तो आई वांट टू कैटलाइज दैट उस नरेटिव। तरीके से ही चलेगा, नहीं तो हाँ नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो कहीं जगह एक तालाब खुदता है, वही मिट्टी को एक तालाब भरोगे, फिर वही तालाब खोदोगे, फिर ये वाला तालाब भरोगे, जीरो सम पर आपने 200 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉकेट कर लिया। तो वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो, आप ग्रोथ की तब सोचते हो जब सर्वाइवल सॉर्टेड हो। वाटर Correct. सर्वाइवल की बात है। एंड आई कम फ्रॉम इंदौर, जहां पे देश का सबसे महंगा पानी है। वो द सिचुएशन इज वर्स देन बैंगलोर। जितना द कॉस्ट ऑफ वाटर इन इंदौर का 85% पानी नर्मदा से आता है, जो 100 किलोमीटर दूर है। जैसे बैंगलोर ने कावेरी सुखा दी है, इंदौर हाँ, नर्मदा सुखा रहा है। और हम पानी छोड़ते गंगा में है, हम लेते नर्मदा से है, छोड़ते छोड़ते गंगा में है। और 85% ऑन वन सोर्स। अब नर्मदा समुद्र तक नहीं पहुंच रही। अब क्या होगा अगले साल? किसी साल मान लो 20-30% ही डेफिसिट हो जाएगा रेनफॉल का, पानी ही नहीं होगा। नहीं होगा। गुजरात को, अहमदाबाद को भी साबरमती रिवर फ्रंट बनने के लिए वही पानी चाहिए, मध्य प्रदेश को तो सबको चाहिए ही। क्या होगा उस दिन? तो मतलब सर्वाइवल पे बात आ गई है, एंड देयरफॉर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया इसके बारे में बात करें। बट स्टिल पीपल आर नॉट दैट अवेयर, स्पेशली इन आवर गवर्नमेंट, कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी। हाँ, वो तो डिजास्टर के बाद ही जागेंगे, तब तक वो हिंदू मुस्लिम टाइप के नशे में रहेंगे। तब तक तो हाँ, यही चलता रहेगा। तो उसी अच्छा, से एक बात पोलराइज बताओ, रहेंगे। इसमें दो चीजें, एक तो आपका कॉज हो गया और एक आपके बिजनेस का सर्वेल हो गया। आप उसको मैनेज कैसे करते हो? बिकॉज बिजनेस करना भी जरूरी है, उसके बिना मैं चलूंगा कैसे, सर्वाइव कैसे करूंगा? बट हाँ, हाँ, कॉज भी है एक जो मेरे को करना है। सो हाउ डू यू क्रिएट दैट बैलेंस? इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप वाटर जैसे सेक्टर में प्योर बिजनेस जैसा मार्केटिंग रखोगे, तो लोगों को लगेगा यार ये तो सिर्फ पैसे छापने आया है यहाँ पर, इसको एक्चुअली कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। फॉर अस, लाइक वी आर अ पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। हमने बिजनेस का एक मुखौटा ओढ़ रखा है। फॉर अस इट्स ओनली अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिजनेस तो इसलिए बना है क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि बिना मनी के, बिना फ्यूल के तो आप वो इम्पैक्ट ला ही नहीं पाओगे। नहीं रहा पाओ। मेरा अगर एनजीओ से अगर कुछ एक कंप्लेंट है, तो वो यही है कि आप पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको उतना इम्पैक्ट लाना है कि नदियों के टेंस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर साफ करने हैं, हजारों तालाब करने हैं। तो भाई आप क्या, अगर इन्वेस्टर से फंड्स रेज नहीं कर सकते, आप एक बिजनेस लाइक सोच से कि मैक्सिमम इम्पैक्ट लाना, वो नहीं करोगे, तो इम्पैक्ट उतना नहीं होगा। एंड देयरफॉर एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि एक एक्टिविज्म भी जरूरी है, कि कहीं पे अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आज तालाब खा रहा है, एनक्रोच कर रहा है, उसको भर रहा है, या कोई बिल्डर है, तो उसके बारे में भी बोलना जरूरी है। तो इट्स अ फाइन बैलेंस कि हम कुछ पोस्ट थोड़े एक्टिविज्म और जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन पे भी रखते हैं, कि लोगों को नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स पता चले, हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, हमने कहाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस वाटर बॉडी पे क्या इम्पैक्ट लाए, वो सब भी बताएं, लाइक इन अ बिजनेस लाइक मैनर। बट ऑल्सो बी अ लिटिल पर्पस ओरिएंटेड, कि देखो यार, अभी हैदराबाद में वो 400 एकड़ एनक्रोच कर रहे थे, तो वी ऑल्सो हैव टू कवर सच थिंग्स एज वेल। तो थोड़ा फाइन बैलेंस है। एंड देन लेट्स से इफ यू आर पोस्टिंग थ्राइस अ वीक, तो या लेट्स से 6 टाइम्स इन 2 वीक्स, तो एक पोस्ट वैसा हो गया, तो देन वी हैव टू डिसाइड कि कितना किस पे फोकस करें। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी आप काफी पीआर साइड पे भी काफी फीचर्ड हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया पे और इन सब पे। तो ये ऑर्गेनिक था, लाइक हाउ इट हैपेंड? Yeah, all of this is organic. Till date, we haven't spent a single rupee on any of this paid, कि हमने किसी न्यूज़पेपर वाले को पैसे दिए कि आप हमारे बारे में छापो। आज तक एक पैसा तक नहीं किया। ऑल ऑफ दिस इज ऑर्गेनिक, क्योंकि इट मेक्स गुड न्यूज फॉर देम एज वेल, कि कहीं पे मतलब लोगों को वो एक थोड़ा एक ये भी हमने मार्केटिंग में ओवर टाइम रियलाइज किया है कि वी हैव टू फोकस मोर ऑन द फाउंडर ब्रांड देन द कंपनी ब्रांड। यस। जैसे लोग इलॉन मस्क को ज्यादा फॉलो करते हैं देन टेस्ला, वैसे ही इस सेक्टर में भी हम शुरुआत से कंपनी की मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हुए ओवर टाइम में सीखा है कि यार फाउंडर ब्रांड को उतना एलिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि आज इंडिया में हमेशा से एक दिक्कत रही है हीरो वर्शिप की, कि ये एक आईआईटीएन है, इसने अपना हाई पेइंग जॉब छोड़ के आज ये वाटर बॉडीज रिस्टोर कर रहा है, तो पीपल फाइंड दैट स्टोरी वेरी कंपेलिंग। यस। तो ये थोड़ा मैंने कल ही लिंक्डइन पे, नहीं आज सुबह ही मैंने इस पे पोस्ट डाला है, सेम चीज पे जो आप बोल रहे हो कि फाउंडर ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट, एंड पीपल स्टिल इग्नोर इट इन 2020। राइट।
तो वो है कि बट आई हैव ऑलवेज बीन सोशल मीडिया शाय, तो मैं बहुत पोस्ट ही नहीं करता था, पर फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को पोस्ट करना पड़ेगा। अब लेक का फोटो आप दिखा रहे हो ना, तो आप जाके खुद सामने खड़े हो जाओ, कि आप आपका फेस भी आना चाहिए। मतलब दैट इज समथिंग आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स। आई ऑब्वियसली डोंट लाइक इट, पर मैंने, पर आप करना है मानोगे नहीं, सिंपली। इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट करना चालू किया। मैं इतने साल तक इंस्टा पे था ही नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार लिंक्डइन के अलावा लोग इंस्टा पे भी बहुत हैं, तो इसलिए मैंने इंस्टा चालू किया। तो अब ठीक है, वर्क के लिए करना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग फाउंड अ ब्रांड। नहीं, दैट इज ट्रू। एंड अच्छा, आपने यू हैव रन कैंपेन्स अराउंड हौजे शमशी एंड या अदर पॉजिशंस। आइकॉनिक साइट्स या जहाँ पे कम्युनिटी लेड मार्केटिंग चलती है, तो उस पे कैसे, लाइक क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या सरप्राइजेस आपने देखे? तो जहाँ पे भी देखिए, जो नॉर्मल नागरिक, नॉर्मल सिटीजन्स है किसी भी वाटर बॉडी के आसपास, वो आप वाटर बॉडी रिजुविनेट करते हो तो वो आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि गवर्नमेंट तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स से कुछ ना कुछ बस रैंडम चीजें ही करवा रही थी अभी तक, और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी। आप जेन्युइनली कुछ करने आए हो तो वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। अब हौजे शमसी दिल्ली में मेहरौली में है, हम्म। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास साइट है, पर अब आसपास पूरी बस्ती अच्छे से बन गई है। अब सब ये सबको पता है कि अगर तालाब गंदा होगा, उसमें गंदा पानी होगा तो मच्छर होंगे, फिर वाटरबॉर्न डिसीजेस आएंगे। तो अगर कोई आके इसको साफ कर रहा है तो दे विल हेल्प। अब जैसे तालाबों में, वाटर बॉडीज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का पूजा सामग्री फेंकना। हम्म। लोग उसको बड़े यस। ही पोलाइटली टर्म करते हैं कि हम तो पूजा सामग्री ठंडी कर रहे हैं, ये तो हमारे धर्म में है। भाई साहब, अगर आपके पूजा सामग्री तालाब में डालने से सारी मछलियां मिलती है तो कौन सा पुण्य मिल जाएगा आपको? करेक्ट। आ, तो ये कम्युनिटी को ही, अब अब कम्युनिटी में कुछ लोग तो ये पहले से जानते थे, कुछ लोगों को आपने ये बोला, बताया, उन्होंने साफ तालाब देखा तो उन्होंने खुद से कचरा डालना, पूजा सामग्री डालना बंद कर दिया। पर 10-20% लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनते ही नहीं है, बोलते तेरे बाप हम्म। का तालाब है, तू कौन होता है मेरे को मना करने वाला, हमारी मैं तो तो धर्म दिल्ली के से आगे हम हूँ। किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो डालेंगे पूजा सामग्री इसमें। तो अब ऐसे लोगों को फिर बाकी कम्युनिटी वाले जब बोलते हैं कि मान लीजिए तालाब के टाइम शाम को पोस्ट डिनर कोई बैठा था, वॉक करने आया तालाब के पास, बैठ कर चलो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर तब कोई फेंकने आता है, तो अब यही कम्युनिटी वाले दूसरे लोगों को बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, रुक जा भाई, अभी तालाब साफ किया, क्यों फेंक रहे हो? और बहते पानी में डालते हैं, अगर ट्रेडिशनली जैसे गंगा नदी में डालते यस। हैं तो तालाब में यस। थोड़ी डालते हैं। और कुछ नहीं तो अब आप इसको कंपोस्ट कर लो वहां पे जाकर, या वैसे। तो इस तरीके से कम्युनिटी जब एंगेज होती है तो उसमें तालाबों में या वाटर बॉडीज में कचरा आना भी बंद होता है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के नजरिए से भी, कि कोई वहां पे आके कोई तालाब पे चोरी कर रहा है या कोई बियर की बोतल फेंकने आ गया तालाब पे, तो फिर वो कम्युनिटी मेंटेनेंस का जब जिम्मा लेती कि ये मेरा तालाब है, मुझे इसको साफ रखना है, देखो किसी ने बाहर से आके इतना कर दिया, पर मेरी भी जिम्मेदारी है, तो देन दैट हेल्प्स एंड इवन दे स्प्रेड द वर्ड कि अच्छा, अरे हमारे यहाँ तो तालाब साफ हो गया, आप भी क्लीन वाटर को कांटेक्ट करो ना, बढ़िया कर देंगे। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स ओवर टाइम, द वर्ड ऑफ माउथ। एंड हम एज अ बिजनेस मार्केटिंग करने आएंगे कि हम बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट्स, डजंट वर्क डजंट वर्क। एज वेल एज जितना कोई एक थर्ड पर्सन विद नो वेस्टेड इंटरेस्ट किसी को बोले, तो करेक्ट। दैट डज हेल्प अस। नहीं, दैट दैट स्पीक्स अ लॉट। तो इसमें एक और चीज है, जैसे आपकी इंडस्ट्री ऐसी है और इसमें मार्केटिंग करना इज वेरी डिफरेंट। तो व्हाट इज द बिगेस्ट मार्केटिंग मिस्टेक यू हैव मेड टू डेट? आई थिंक इट्स द सेम व्हाट आई सेड, कि अभी तक हम फाउंडर ब्रांड पे फोकस नहीं कर रहे थे, कंपनी एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहे थे, विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, यस। but I think that was something we could have done differently, because all of the other people who are into water body rejuvenation today have kind of made themselves as heroes. मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड लेक मैन ऑफ इंडिया, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, लेक वुमेन ऑफ इंडिया। अरे भाई, किसने बोला तुमको? खुद से खुद पे टाइटल लगवा लिया और वो खुद के फिर वो हीरोशिप पे आ रहे हैं कि यार, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट टेक्निकली साउंड। मतलब ठीक है, अच्छे लोग हैं, एंथुजियाज्म था वाटर बॉडीज के लिए करने के लिए, पर वो जब हीरो वाला ईगो आने लगता है ना, फिर ऐसा लगता है कि भाई दैट मेरे इज। को पता है, तू मत बता, मेरे को सब आता है। तो फिर वो और एक टेक्निकल जो एक माइंडसेट होना चाहिए ऑफ अप्रोचिंग सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कि यार इन सीटू ही सोल्यूशन चाहिए, नेचर बेस्ड चाहिए, केमिकल भी नहीं चाहिए, सस्टेनेबल भी चाहिए, लो कॉस्ट भी चाहिए। इन सब में ना फिर काफी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। बट
लोग फिर वहां पे दिक्कत करते हैं। लोग क्या अभी तालाब पे बेसिक काम करते हैं कि कचरा उठा लेंगे, तालाब गहरा कर देंगे, पेड़ लगा देंगे, बेसिक। तो भाई पानी वाटर क्वालिटी का क्या, सबसे मेन तो तालाब पे सबसे वाटर मेन तो क्वालिटी है ना। क्वालिटी आप है। आसपास की सब चीजें कर रहे हो, मेन चीजें छोड़ रहे हो। पर आप सुनोगे भी नहीं कि किसी और से कोलैबोरेट करो, क्रेडिट्स कैसे दे दें किसी और हाँ, को। तो ये एक दिक्कत है इशू, अभी ये से। तो हर इंडस्ट्री का हर जगह का इशू है। हाँ, ओवर टाइम पीपल विल रियलाइज एंड पीपल सो। विल रियलाइज ओवर द टाइम, अभी तो आने वाले 5 साल में पता चल जाएगा। उसके और पहले उसके बाद, डिजास्टर्स 5 साल दूर भी नहीं है आप। हाँ, नहीं इवन या आप, मैं तो कह रहा हूँ देहरादून को ही देख लो, पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सारे स्रोत है हमारे पास, हाँ, तब हिमालय। इतनी दिक्कत हो रही है। नीचे तो क्या ही हाल होगा। और राइट। यहाँ पे देयर वाज अ टाइम कि मैं अगर आज से बात करूं, मैं जब रहूंगा 7th 8th क्लास में, तो मैं कहीं भी ऐसी तालाब में जाके घुस जाया करता था। अब वो इतने पोल्यूटेड हो चुके हैं, बाहर से लोग आके गंदा करके चले आते हैं। अभी थोड़ा यहाँ पे लास्ट 2 3 साल में शुरू हुआ है दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू से कि यार आप ऐसे यहाँ के बाहर से गंदा मत करो, पानी वो होता है ये होता है। बिकॉज लोग आते थे बाहर से पिकनिक मनाने, वो वही खाना वो कर दिया, गंदगी फेंक दी, वो इतनी गंदी हो गई वो जगह इतने कुछ टाइम बाद कि अब वो जाने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं गुच्चू पानी का, तो इट वॉज अ हेवन पहले। अब दोबारा इन्होंने किया है काफी कुछ, बट हाँ, वो बीच में एक फेज ऐसा आ गया था कि वो ऐसा सड़ा हुआ नाला बन चुका था, नोबडी वांटेड टू गो देयर। हाँ, सो दैट इज देयर। तो ये इसमें तो राइट। सस्टेनेबिलिटी में ऐसा कौन सा मार्केटिंग चैनल है जो सबसे अंडररेटेड आई थिंक लिंक्डइन। है? लिंक्डइन। आई थिंक लिंक्डइन इज वेरी इफेक्टिव। इंस्टाग्राम से आपको क्वांटिटी ऑफ लीड्स या जितने इंप्रेशंस आप सेम जितने लोगों तक पहुंच सकते हो, इंस्टा माइट बी बेटर एटसेट्रा। पर क्वालिटी ऑफ लीड्स के हिसाब से लिंक्डइन बेस्ट है। बिकॉज अभी एटलीस्ट हमारे सेक्टर में वाटर बॉडीज में द वंस रिजुविनेटिंग द वाटर बॉडीज आर वेरी वाइट कॉलर्ड पीपल, पढ़े लिखे हैं, वो पहले से समझते हैं कि प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। या हम कॉर्पोरेट्स में है, सीएसआर टीम का पार्ट है, या किसी एक प्रोफेशनल एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट का पार्ट है। तो दोस पीपल आर देयर ऑन लिंक्डइन। वो इंस्टा पे भी होंगे, पर लिंक्डइन पे सिर्फ सीरियस लोग ही आपको मिलेंगे। राइट। तो लिंक्डइन आई थिंक इज अ अंडररेटेड चैनल। एंड ऑल्सो इन आर सेक्टर, सिंस आई मेंशन कि फाउंडर ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक पीआर बहुत जरूरी हो जाता है कि यू कीप अपीयरिंग ऑन टीवीज, रेडियोज, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, podcasts, give lectures here, speeches, etc. So you have to keep your like just keep yourself visible out there. So all of these channels also help, and also when influencer marketing भी इसमें, because influencers can actually reach out to lakhs of people with लैक्स just ऑफ one पीपल। video. आप लिंक्डइन पे 10,000 15,000 फॉलोअर्स के साथ भी आपके जितने फॉलोअर्स है उतने इंप्रेशंस भी नहीं जाते हैं। तो अक्सर इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल्सो डिसेंट स्टेप, एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, 1 2 5 कवर कर लेते हैं, तो फिर बाकी सब भी फिर तो बाकी ऑटोमेटिकली। सब खुद ही आ जाते हैं। राइट। Yeah, एक क्वेश्चन था, so somebody asked this, we sent out emailer, so somebody asked better marketing ambassador for your brand, a bird returning to a revived lake or a viral drone shot? बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, क्योंकि मार्केटिंग इमोशंस पे होनी चाहिए। A bird returning to a rejuvenated water body gives a very good emotion, a very good vibe. घर वापसी की, यार एक पूरा इतना खराब था, यहाँ से बर्ड्स पलायन कर गई थी, आज पूरी वापस इकोलॉजी रिस्टोर हो गई, वापस आए हैं। तो इट गिव्स देम होप, इट गिव्स देम हैप्पीनेस एंड सम ऑप्टिमिज्म फॉर द फ्यूचर। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इमेज। साथ ही साथ अगर आप एक ड्रोन शॉट से लोगों को दिखा के डैजल कर दो, अनदर इमोशन की वाओ व्हाट, हाउ व्हाट ब्यूटीफुल, वो भी अच्छा इमोशन है। बट आई थिंक पहला वाला को मैं थोड़ा एज दूंगा ओवर द सेकंड, पर बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी एसेंशियल। वेरी, नहीं मैं गिव देम अ समझ। बर्ड्स आई व्यू आल्सो, पूरा लेक एक बार में कैसा दिख रहा है। अभी तक आपके लिए लाइक ओवर दिस 8 years ऑफ जर्नी, 9 years ऑफ जर्नी, सबसे ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है कि हाँ, दिस इज व्हाट यू नो, वो एक मोमेंट होता है ना बढ़िया सा आपके काम में, तो कौन सा ऐसा फुलफिलिंग मोमेंट था? आई थिंक एक मोमेंट के बजाय आई थिंक इट्स द कांस्टेंट रीअफर्मेशन पीपल गिव यू। आपने एक लेक रिस्टोर की, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको वाटर हीरो का अवार्ड मिल गया, तो देन यू फील ओके, अच्छा है। लोकल न्यूज़पेपर ने उसको छाप दिया, आपको 5 10 रिलेटिव्स फ्रेंड के फोन आ गए कि वाह यार अच्छा काम कर रहा है। या किसी भी पुराने फ्रेंड से आप 2 5 साल बाद रिकनेक्ट हो, बोलता है भाई बहुत अच्छा कर रहा है यार, हर कोई नहीं कर सकता ये। तो वो एक जो कांस्टेंट रीअफर्मेशन मिलता है आपको लोगों से कि यार दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग।
एक बार में कोई एक बड़ा मिल जाए तो वो थोड़े दिन तक ही लास्ट करता है, फिर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए। फिर तो खत्म। पर जब आपको लोग आके बोलते हैं यार आपने, जैसे अब हम अन्नपूर्णा लेक इंदौर में ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स पे लिया है, तो अब हमारे जो प्रोडक्ट्स जब हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है इंदौर से बैंगलोर, दिल्ली एक्सेट्रा, तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर है वो उनका घर उसी के पास है लेक के, तो मेरे को 4-6 बार बोल चुके कि अरे मैं हर रात वहां पे पोस्ट डिनर आके बैठता हूँ, अब कोई कचरा फेंक रहा था, पूजा सामग्री डाल रहा था तो मैंने उसको रोका। तो दैट रीअफर्मेशन कि हाँ लोग भी चाहते हैं तालाब साफ हो, और फिर वो उनकी भूमिका भी निभाने को तैयार हो, और आपको भी वो तारीफ करें कि यार आपने बहुत अच्छा कर दिया है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, तो दैट गिव्स यू कॉन्स्टेंट रीअफर्मेशन एंड गिव्स यू द मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट से लड़कर you have to keep going is a tough thing. Like टफ most थिंग people will leave it in the first year or two. है, इट इज अ तो टफ। ये मोमेंट्स रेगुलरली आते रहते हैं। बट इट इज अ फुलफिलिंग जर्नी, आई कैन सी दैट। It is, it is. And also in terms of workplace location, water body से better environment क्या मिलेगा काम करने करेक्ट। को? And once you've rejuvenated it, तो nothing better, right? बंद कमरे से तो better है बाहर तालाब हाँ पे। नहीं दैट इज। तो अभी कौन सा नेक्स्ट वाटर बॉडी इज योर ड्रीम लोकेशन टू रिजुविनेट? तो मैं एक्चुअली ऐसा नहीं सोचता कि एक ड्रीम लोकेशन है वाटर बॉडी को। अभी रिसेंटली फरवरी मार्च में वी वर्कड ऑन 6 पॉन्ड्स अराउंड एनसीआर। अभी हम लेक्स आर इजियर टू रिस्टोर, क्योंकि कोई काफी लिमिटेड सा इकोसिस्टम होता है, लिमिटेड 1 या 2 या 3 नाले आ रहे होते हैं। नदी बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज कोई भी भारत का एक अर्बन सेंटर भी नहीं है जो बोल सके हमारे यहाँ नदी साफ बहती है, कि हमारे नाले साफ हैं। एक पूरे भारत में एक शहर नहीं है। तो वो एक एम है कि नदियों को भी रिजुविनेट करें। क्वांटिटी वाला पार्ट तो है ही, जो एक पैरेलल फाइट है, पर जितना पानी है एटलीस्ट उसको साफ रखें कि आप चलो उसको पियो नहीं तो एटलीस्ट पाँव डाल के तो बैठ पाओ। करेक्ट। बेदिंग स्टैंडर्ड्स तक तो ले आओ कि उससे बीमारियां नहीं फैल रही हो, मच्छर ना हो। तो दोज आर माय काइंड ऑफ द नेक्स्ट ड्रीम ऑफ सॉर्ट्स कि यार नदियां आप रिस्टोर करें, क्योंकि नदियों का इम्पैक्ट ऑनेस्टली मतलब वन नदी वर्सेस वन लेक, नदी का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वो बहुत किलोमीटर तक जाती है। लेक्स का लोकलाइज्ड है, पर लेक्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। नदियां वाला प्रॉब्लम कोई एड्रेस नहीं कर पाया अभी तक। लेक्स फिर भी हो रही है रिजुविनेट, स्टार्ट हो गया प्रोसेस एटलीस्ट। सो नहीं, आई होप कि आप वहां जल्दी पहुंचो। अच्छा, थैंक यू। before we, so we have already I think covered 57 minutes, so generally we close our podcast in an hour. So my last question for the episode will be, before you speak, कि अगर if I ask you to be your 25-year-old self, तो आप अपने आप को क्या 5 एडवाइसेस दोगे if you are thinking to start a business? One would be to do the market research beforehand. मैं जब क्लीन वाटर स्टार्ट करा था ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने से, तो जितने लोगों से मिलता था लोग बोलते थे अरे बहुत बढ़िया फील्ड चूज किया है, आने वाले समय में तो ट्रीटमेंट प्लांट हर जगह लगने ही है। ब्रॉड स्ट्रोक्स में बात करते थे, पर आप जब बारीकी में जाते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, क्लाइंट से बात करते, जो मैंने नहीं की, आई नोज डाइव्ड इनटू इट। वो अगर मैं पहले से मार्केट रिसर्च करता तो मेरे को समझ में आता कि लोगों को ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाना, लोगों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी चाहिए। ये इनसाइट अगर मेरे पास पहले होता तो मैं शायद समय बचा पाता, या मैं जिस तरीके से मार्केटिंग करता या क्लाइंट्स से जैसे इंटरेक्ट करता वो मैं चेंज करता। तो ऑप्टिमिज्म इज गुड, पर एक रियलिज्म, डूइंग अ ऑन ग्राउंड मार्केट रिसर्च, क्या बिजनेस चालू करने के पहले आपके 100-200 प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात कर लो, तो जिसमें जितना समय आएगा दैट विल सेव 10x योर टाइम लेटर। दैट इज वन एडवाइस आई गिव टू यंग सेल्फ। The other is actually like think about cash flows, because I had a co-founder earlier. We weren't making a lot of money. He got married, had a kid, so obviously his expenses swelled. He had to move on, take up a job again. So एक cash flows वाली planning and being realistic about it. कि जैसे हम जब ट्रीटमेंट प्लांट बनाते थे, कोई क्लाइंट चाहे तो 3 महीने में पूरा ट्रीटमेंट प्लांट बना सकता है, वो 6 साल बाद भी सिर्फ गड्ढा खोद के रुका हुआ है। कि यार वो जब अधिकारी आएगा उसको बोल दूंगा ना, देखो काम चालू कर दिया है, मैं क्यों खर्चा करूं अभी जब मैं ये इन्वेस्टमेंट 6 साल 10 साल डेफर कर सकता हूँ। अगेन पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च ही है, बट इट अफेक्टेड आवर कैश फ्लोज। कि मान लो आप 10 लाख के कोई एक रेट मिला, उसमें आप 2 या 3 लाख अगर कुछ बचा पाते, तो वो तो हुआ ही नहीं ना। आपने उसने तो शुरुआत को आपका बस 50,000 1 लाख दिया, तो आप
जब 3 लाख इफ यू कुड हैव मेड आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, आप सिर्फ 30,000 बना पाए, एंड देन योर कैश फ्लोज गो फॉर अ टॉस. तो ये एक चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद कंजर्वेटिव प्लानिंग, कि गिरी से गिरी हालत में ये तो है, रियलिस्टिकली है और ऑप्टिमिस्टिकली हम इस पे एम करना चाहेंगे ग्रोथ के लिए. That's one advice. And another, I'll actually tell you to be absolutely clear in your mind of how you deal with the government. देखो, सही गलत कुछ नहीं होता. कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर करप्शन करके, अब सब ऐसा करे तो हम भी करेंगे, तो क्या कर सकते हैं. मैं तो अकेला कर नहीं रहा, सभी कर रहे हैं, तो चलो मैं भी ठेकेदार बनूंगा, गवर्नमेंट करप्शन करूंगा. इफ आप उस माइंड सेट के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर लोगे, पैसे बना लोगे. पर उसमें भी याद रखना, जिस दिन गवर्नमेंट की से आप टेढ़े चले, वो आप पे इंक्वायरी बिठाएंगे, आपको उनकी कठपुतली बनवाएंगे और आपको निचोड़ते जाएंगे. आप उसके हो तो ठीक है, अगर आप दूसरे माइंड सेट के भी हो कि मैं एक पैसे का करप्शन नहीं करूंगा, लड़ना पड़े लड़ूंगा, जो भी होगा, तो बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड. एंड इफ यू हैव को-फाउंडर्स, यू शुड बी अलाइनिंग दैट ऑल्सो, कि आप क्या स्ट्रेटेजी से कर रहे हो. Yeah, also there could be a third, fourth strategy, a middle path, etc. So one should be absolutely clear of कि यार उसका लाइफ का क्या व्यू है, व्हाट्स हिज पर्पस ऑफ द लाइफ, या वो लाइफ को किस तरीके से देखता है. कि यार ये तो एक गेम थ्योरी जैसा है कि ईच प्लेयर फॉर हिमसेल्फ है, कि वो थोड़ा वासुदेव कुटुंबकम जैसा, लाइक द वर्ल्ड इज माइन, इज आवर्स, हम सब एक हैं वाले थॉट प्रोसेस है. तो वो आपका थॉट प्रोसेस एंड आपके रोज के कर्म एंड एक्शंस वो अलाइन होने बहुत जरूरी है. दैट इज ऑल्सो जस्ट आई आस्क पीपल टू थिंक मोर अबाउट इट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग. वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज व्हाट ऑल यू टोल्ड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली. मेरा भी पहले को फाउंडर था, बट देन family, kids, cash flow उतना नहीं. So right, things happen, so I also realize the same. So that is true. yes. नहीं, but I think this is very practical and very clear. So to our audience, it must have given them a lot of value. So उसके लिए थैंक यू सो मच प्रियांशु कि आपने आज आके यहाँ पे अपना 1 घंटा दी और इतनी वैल्यू दी अपनी ऑडियंस को, बिकॉज आई बिलीव टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट वी हैव, एंड फॉर आवर ऑडियंस एज वेल, जिन्होंने इतना लंबा एपिसोड यहाँ तक देखा. To you guys as well, because our podcast keep running because of you guys. So thank you so much to you guys. Thank you to you, Priyanshu. Priyanshu, before ending this episode, would you like to say anything? Yeah. And I just wanted to say thank you for inviting me, and I hope this message reaches out to maximum people. I hope I was being as transparent, as honest as I can, so that people could learn from my experiences, save time and effort of their own, and but more importantly, जो हमें एक लिमिटेड टाइमलाइन में जो क्लाइमेट चेंज, वाटर कैटास्ट्रफी, डिटीरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्टेज, जो भी प्रॉब्लम्स हम अगले 5 से 10 साल में सॉल्व करने हैं, अभी ग्राफ उस तरफ नहीं जा रहा है. हमें मेजर चेंजेस, इंप्रूवमेंट, स्ट्रैटेजी चेंज, गवर्नमेंट पे प्रेशर, फंडिंग, सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा एक साथ. एंड इसके लिए यूथ को ही आगे आना पड़ेगा. और मैं बहुत एक सीधी बात बोलता हूँ भाई, यूथ ही है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला है इससे. देख लो यार, अपना देख लो, है ना. ये बात उनको समझ में आती है. तुम तो अपना देखो ना, तुम तो क्या दुनिया की चिंता कर रहे हो. तो भाई तुम्हारी ही 12 बजने वाली है. अगर सांस नहीं ले पाओगे दिल्ली में, या यमुना का पानी जहर से खराब होगा, तो आप ही पे आएगी, आप ही को जिम्मे वो होगा. वो इवेंचुअली ग्राउंड वाटर में जाएगा, आपके बच्चे बोन डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होंगे. yes. आप ही पे आना है ना. अपना देख लो, और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाओ ताकि चेंज आ पाए. ये एक मैं लाइक टॉक मोर अबाउट इट, पुट प्रेशर ऑन योर पॉलिटिशियंस टू वर्क ऑन वाटर, तभी चेंज हो पाएगा. दैट विल बी माय फाइनल मैसेज. नहीं, आई आल्सो very relate to this, so I think this is a good message. We will try to promote as much as we can, because we believe in your cause and it is important. I तो have lived in देहरादून, और मैं देख रहा हूँ किस तरीके से यही शहर तबाह हो रहा है. So yeah, that is true. But yeah, प्रियांशु, काफी अच्छी बात बोली आपने, and we give you more power कि आपका एक कॉज जो है बहुत आगे जाए. हम आपके साथ हैं. And yeah, again, thank you so much to you and our audience. And guys, if you have any questions, like तो आप कर देते हो, do post them in the comment section, or do let us know in the emailers that we sent out to you, or we will put the link of Priyanshu's LinkedIn profile. आप वहाँ उन्हें reach करो. You want to collaborate, you want to work with them, जो आपको लगे आप उनसे वहाँ पे reach करके बात करो. And on that note, thank you so much for everyone for watching this exciting episode. Stay tuned. We'll be back soon with another exciting episode on our podcast series. Till then, take care. Bye bye. Thank you everyone. Bye bye.